ओके, नो इश्यू। विल स्टार्ट विद दिस। लास्ट टाइम हमने क्या किया था? सर हॉल इफेक्ट। हॉल हॉल इफेक्ट। इफेक्ट एक्सपेरिमेंट। ओके, हॉल इफेक्ट कर दिया था बराबर ना? ओके, ठीक है। इज देयर एनी इश्यू एंड परफॉर्मिंग दैट सर, एक्सरसाइज सर डे बिफोर yesterday I just mailed you रिगार्डिंग? regarding sir the recording of hall experiment. रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट Hall या effect. ऑफ हॉल इफेक्ट ना? हम्म। प्लैंक कांस्टेंट का हो गया ना आपका? हाँ। प्लैंक कांस्टेंट का यस हो सर। गया। ठीक हॉल है, ठीक इफेक्ट है। में सर रीडिंग्स में there is a little bit of confusion. व्हाट कंफ्यूजन? Means sir, sometimes we get right readings and like wrong readings like that. देखो, इसमें रॉन्ग रीडिंग जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, बिकॉज सर बहुत वैरी करती है सबकी रीडिंग्स। हाँ, वेरी करेगी, डेफिनेटली करेगी, बिकॉज नाउ द फ्रॉम last year onward, they have updated all the virtual labs and they have fitted somewhat more data. Okay, so एक एक्सपेरिमेंट अगर आप करो और मैं करूँ और तीसरा कोई बंदा करे, राइट? तो सबके, हम तीनों के अलग अलग ही आएंगे रेटिंग्स, बट सर बिकॉज ऑफ आप दैट। वो रिकॉर्डिंग की लिंक भेज दो तो एक बार कंफर्म हो जाए। हाँ, 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 ठीक, ठीक, नो इश्यू। थैंक यू सर। Okay, other than that, Webex meeting. मतलब simply you can write down the title of the experiment, aim, apparatus, okay, circuit diagram, then observation table, calculations, result, okay, and then finally your quiz questions. सर प्रोसीजर या थ्योरी में से तो नहीं लिखना कुछ? हेलो। Sorry, my mic was muted. Yeah, it is what is my perception is that whenever we are observing something, right? And if we write down that in our own language, no, so it is generally happen that it is good for us. Okay, so yeah, it is preferable that you don't stick with my procedure. Okay, you create your own observation and then list down it, because you are ultimately writing for your second. यस सर। So today my plan is to operate the 4 probe setup. It is just like not like that, but yeah, intention is same. That is, we are going to find out the energy band gap, conductivity, resistivity for semiconducting materials utilizing the 4 probe setup.
I hope my screen is visible to you. This is the four prop setup. Should I give send the mail? This one, right? Uh, Link in the chat box. Yeah, sir. Just a minute. Huh? सर मेल भी कर दो ना. हाँ, मेल किस चीज का? Yes, sir. सर चैट बॉक्स में दे दीजिए, वैसे ही बहुत मेल्स आते हाँ, exactly yes. Okay, sir. Okay, just check the chat box. So after login, we'll be able to perform this setup. See, uh, here we are having as usual, just like hole prop or Hall effect experiment. We are having a semiconducting material, मतलब in terms of chip, in the form of chip, right? A thin wafer, okay, a form of thin wafer, and we want to find out the resistivity and hence conductivity, and then we want to find out the energy band gap, right, accurately. Even for the nanostructures also we used to find out this particular technique, because it is very reliable and accurately we can have the energy band gap relations and energy band gap results also, right? So as usual, you need to write down in your uh, record book about the aim. Okay, at first you mention the uh, title, then aim. No need to write down the apparatus, but yeah, of course you can just note down the circuit diagram. This is the circuit diagram. Okay, So, both sir, the first aim diagrams. and circuit diagram. Yeah, aim and then see the circuit diagram. Both diagrams, right? See, let me explain that. This is the small sample of your semiconducting material. Okay, and we are utilizing mm, the four terminal over here. These four terminals are made up of steel, stainless steel. Okay, a very highly purified stainless steel. Okay, whose resistivity is very ignorable. Conductivity is somewhat higher. Okay, now what we used to do is that uh, first and fourth probe as shown in the diagram, I and I, right? If you just see the arrow between the first and fourth terminal, so I यहाँ से मतलब current यहाँ से enter हो रहा है, you can see that arrow is downside, okay, and here arrow is upside. So what we mean to understand is that इस टर्मिनल से, एंड इट इज पेंसिल लाइक टर्मिनल, यू जस्ट ऑब्जर्व दिस, ओके। ये पेंसिल लाइक टर्मिनल क्यों होता है? because in electrical engineering we used to minimize the contact potential. I think you must have heard about this term, contact potential, right? तो contact potential को कम करने के लिए impedance mismatching जो होता है उसको, उसकी इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग ऐसे एकदम पतले एंड सॉफ्ट एंड शार्पन्ड एजेस वाले कनेक्शंस करते हैं, ओके, बिकॉज दिस सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, इट इज कंडक्टिंग मटेरियल। ओके, मेरा चिप जो होता है वो सेमीकंडक्टर है, बट आई शुड नॉट फॉरगेट दैट माय टर्मिनल्स जहाँ से मैं करंट दे रहा हूँ, वोल्टेज ले रहा हूँ, तो वो बेसिकली conducting material है, okay, so impedance mismatching will be there, okay, so we need to take care of that also, and that's why the pencil like probes are designed, okay, and current यहाँ से अंदर enter होता है and it is exiting uh, the sample, okay, from here, okay, so current enters from this particular terminal and it leaves or exit from this particular terminal, right? But meanwhile there is always some potential drop will be there between second and third probe. So we used to measure the potential drop between
the second and third probes. Okay, so as usual, if you just see the first diagram over here, you can see that the voltmeter is connected parallelly in between the second and third probe. Okay, whereas the current from the current source, the current is connected with this power supply in series with this. Okay, current meter is in series and voltmeter is in parallel, right? तो सिंपल सी चीज है कि करंट आप अप्लाई करो विद द हेल्प ऑफ दिस कांस्टेंट करंट पावर सप्लाई. Okay, and current is flowing like this, barabar, like this, and whatever the potential drop is occurring over here, that we use to measure, that's all. Okay, and the corresponding equations, हाँ बोलो. नहीं नहीं नहीं, ये जो पार्ट है ना, दिस पर्टिकुलर पार्ट, इट इज ओनली द सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, ये वाला. बाकी ये तो कनेक्शन है, ये कनेक्शन है वायर से. ओके, आपका एम क्या है बेसिकली कि आपको एक सेमीकंडक्टर आपके हाथ में है. ओके, छोटा सा चिप आपके हाथ में है, एंड यू वांट टू मेजर इट्स रेजिस्टिविटी एज वेल एज एनर्जी बैंड गैप. दैट इज ओनली द थिंग, राइट? So the corresponding relations are given to you like this. Let me show you how to perform this experiment. So do we need to write theory? No, not at all. You just refer it, okay, and try to understand. See here, already circuit connection is there, right? And this is constant current source. ये हमारा constant current source है, 1.00 दिखाया गया यहाँ पे by default, right? Over here, 1 milliampere is allowed to enter via this black wire. You can just see your screen that here, with this black wire we are supplying the current. Okay, so what you need to understand is that हालांकि यहाँ पे एक ही black wire दिखाया गया है, but that black wire itself consists of two tiny wires, two thin wires. Okay, and we are supplying the current. Okay, and see यहाँ से वो अंदर एंटर होता है. Okay, we can see the cross sectional view also like this. देखो, this cross sectional view, मतलब मैंने सिंपली यहाँ पे ये चेक बॉक्स को टिक मार्क किया है like this. Okay, so what I mean to say is that we are supplying the constant current of 1 milliampere. Okay, via this black wire. Okay, between first and fourth probe. तो यहाँ पे दिखाया गया है, देखो, प्रोब नंबर 1 लेफ्ट से चालू करते हैं. प्रोब नंबर 1, प्रोब नंबर 2 and 3 are over here, and then probe number 4. Okay, तो फर्स्ट एंड फोर्थ के बीच में हम लोग करंट अप्लाई करते हैं, एंड सेकंड एंड थर्ड प्रोब के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है वाया दैट 1 मिली एम्पियर करंट, that we used to note down over here from the screen. Okay, so for example, by default, the you can say at room temperature, मतलब 25 यहाँ पे दिखा गया है, देखो 25, ये oven है. Okay, so we used to vary the temperature also. Okay, वो मैं आपको बाद में डेमोस्ट्रेट कर दूंगा. पहले आप ये समझो कि करंट 1 मिली एम्पियर है, तो 1 मिली एम्पियर करंट से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वोल्टेज जनरेट होता है वो इतना है 0.0291. ओके, because it is digital microvoltmeter. See, it is digital microvoltmeter, right? Now just a minute, we are performing our experiment currently with the help of this germanium. Okay, we are having silicon also. Okay, so at first, as far as the demonstration is concerned, definitely I will go for the germanium. Current 1 milliampere. Okay, 1 milliampere, 2 milliampere, मतलब कि हमें करंट बढ़ाते रहना है. एक काम करते हैं ना, we should go for we increase the current up to, for example, 5. Okay, 5 milliampere, because
the mandatory condition is that you just apply the current from your end, right? So हमें क्या करना है, 5 मिली एम्पीयर करंट अंदर एंटर कर दिया, right? Now we used to मतलब now throughout the experiment this current 5 milliamp should not change throughout the experiment, right? So my instruction number 1 is that you must not change the current. You just apply as it is your x milliampere current to it. जैसे मैंने यहाँ पे 5 milliampere अंदर एंटर किया है, right? Now we need to change the temperature, and for that sake we need to set and then press it measure. हमें क्या करना है, 5 मिली एम्पेयर कांस्टेंट करंट से जो मिला था, दिस इज अ फर्स्ट रीडिंग. ओके, just wait for 2 or 3 minutes. तो सर I'm going रेंज to ऑफ set ओवन रेंज ऑफ अवन. अभी हम लोग एज यूजुअल 1 लेते हैं, मल्टीप्लाई 1. तो सर आपने सेट पे क्लिक किया. हाँ, मैंने सेट पे क्लिक किया, तो व्हेन आई क्लिक ऑन द सेट ना, तो सेट डिसेबल हो गया, मेजर इज इनेबल्ड नाउ, राइट? एंड सी जस्ट मेजर पे क्लिक करने से सेट इनेबल हो जाता है. एंड देन ये जो है रन सेट करने से, हाँ, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग क्या करेंगे, 10-10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे. वी आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 10-10 डिग्री सेंटीग्रेड. एज ऑफ नाउ, एज we are interested to note down the value of voltmeter, okay, under constant current of 5 milliampere, the value of voltmeter we should note down. Okay, so as usual you can see over here on your screen that 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है ड्यू टू 5 मिली एम्पेयर कांस्टेंट करंट, इट इज 0.1454. okay, now what we need to do is that just drag this button and make it 35 degree centigrade. Okay, and then just click here, measure, and then run. तो जब रन करोगे तो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैट 29, 30, 31, 32 ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. ओके, सो 35 आने पे आपको जो पहले 1.14 दिखता था, नाउ इट इज 0.1370. okay, so my instruction number 1 is that we should not change the current once it is set, राइट? जैसे मैंने यहाँ पे 5 मिली एम्पियर लिया हुआ है, तो 5 मिली एम्पियर थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट लेट इट बी 5 मिली एम्पियर, राइट? देन इंस्ट्रक्शन नंबर 2 इज दैट you just keep the range of oven as it is multiplied by 1. okay, so बस सिस्टम by default select किया हुआ है, right? then press the set button, okay, and then क्लिक द रन बटन. मतलब उससे सेट करने से क्या होता है, आपको एक चांस मिलता है टू इंक्रीज द टेम्परेचर. मतलब कहाँ पे पहुंचना है आपको, जैसे अभी हम लोग 35 पे हैं. ओके, सो इट इज माय सेकंड रीडिंग, राइट? नाउ हाउ टू टेक द थर्ड रीडिंग, just drag this button until 45. okay, and then just click on the run button like this. तो वो 35 से शुरू होकर 45 तक चला जाएगा. and you can see on your screen that the digital micro voltmeter जो होता है वो decrease होता है. why decrease होता है? because as we know that since we are working with semiconducting material, its resistivity with the temperature is decreasing. okay, with the increase of temperature the resistivity is decreasing, and once the resistivity is decreasing the voltage generated is decreasing because conductivity is increasing. बराबर? if you wish you can select any तो one मतलब of this. टेम्परेचर के साथ हमें वोल्ट मीटर की रीडिंग्स लेनी है ना. बस बस वही करना है और कुछ नहीं करना है. ओके. और सर रेंज ऑफ ओवन तो 10 वोल्ट्स. रेंज ऑफ अवन जो है ना, अगर आप 1 लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मल्टीप्लाई करंट 1. को फिक्स रखना है ना सर? हाँ, करंट को आप फिक्स कर दो. जब फॉर एग्जांपल आपने 7 मिली एम्पियर फिक्स किया ना, तो उसको 7 ही रहने दो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट.
ओके। तो सर कितनी रीडिंग्स लेनी है, मतलब टेम्परेचर और वोल्ट मीटर की? आपका टेम्परेचर 95 तक इंक्रीज करते रहो ना। 25 to 95। हाँ, 25 to 95. Okay, you just roughly note down. I am just sending the word file of this particular experiment. मतलब सर 25 की, 35 की, 45 की, ऐसे मतलब 10-10 के इंटरवल्स पे लेनी है ना हाँ रीडिंग? हाँ हाँ, 10-10 के इंटरवल भी आप ले लो, ओके। राइट। हाँ। आपको सिंपली वोल्टेज ही नोट डाउन करना है और कुछ नहीं करना है। ओके। एंड ओके, यस। फिजिकली भी अगर आप फिजिक्स लैब में आते हो तो वी यूज टू डू द सेम थिंग ओवर हियर। तो सर ऐसा जर्मेनियम के लिए और सिलिकॉन के लिए, दोनों के लिए करना है? हाँ, as of now we are performing for the germanium and the same thing you need to repeat for the silicon also. सर वो टेम्परेचर सेट करने वाला पार्ट सर वापस सिखाओगे प्लीज? Yeah, just let me send the word file so that you can just understand that. Okay, just wait for a moment. सर रेंज ऑफ वोल्ट मीटर को भी फिक्स रखना है? यस, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर को फिक्स कर दो। एक्चुअली वो वोल्टेज पे ही रखो। 10 वोल्ट जो है ना, 10 वोल्ट है, 1 वोल्ट है, कुछ है ना ऐसा। 10 वोल्ट है। 10 10 वोल्ट वोल्ट है है सर। तो 10 वोल्ट कांस्टेंट रख दो, चलेगा, नो इशू। ओके, थैंक यू।
Yeah, have you received my email? Just check the inbox. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. सर ये हॉल इफेक्ट के बाद का ही एक्सपेरिमेंट है ना? हाँ हाँ हाँ। ओके सर। सर एक्चुअली क्या आपने सर मतलब लिंक आपने मेल किया था? 3 एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं ना सर अभी तक, ये 4th है ना? थर्ड है। हाँ मतलब फोर्थ डायमेंशंस वाला फर्स्ट था। हेलो हेलो सर, हेलो यस यस यस। सर, आपने लिंक मेल किया था कौन सा लिंक? ये क्लास का? ना, मैंने नहीं किया। मतलब सर मतलब मुझे have you लिंक sent नहीं me मिली। that? I don't know. कि मैं as usual मतलब मैंने लोअर केस में भी करके देखा, but then also it is not reaching to the class. But anyhow, you are in the you are at the right place as far as I सर believe. आई एम सर मतलब मैंने लेट ज्वाइन किया इसलिए, क्योंकि Okay. मैं गूगल मतलब जीमेल पे वेट कर रहा था कि लिंक नहीं है, बट फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे देखा तो लिंक आ गई थी, इसलिए फिर मैंने लेट ज्वाइन किया। तो आप रिकॉर्डिंग भेज दोगे प्लीज इसका? हाँ हाँ हाँ, ठीक, no issue. थैंक यू सर। सर Yes. सर जर्मेनियम का डन है, तो अभी सिलिकॉन का कर लो। ओके ओके, सिलिकॉन का भी एज यूजुअल मतलब हाँ, उसी पैरामीटर से आप सिलिकॉन को ही और सर उसमें वोल्टेज कितनी रखनी है? इसमें कितना रखा था? 10 वोल्ट ना, मतलब 10 वोल्ट। करंट ने हाँ, करंट करंट। 5 एम्प रखा था और वोल्टेज 10 वोल्ट रखी थी। हाँ बस ठीक है, वही कॉन्फ़िगरेशन रखो। सेम, ओके। और सर उसमें क्रॉस सेक्शन? यस, उसमें क्रॉस सेक्शन आपका जो है, मतलब क्रॉस सेक्शन तो वैसे भी वो आपका अंदर का स्ट्रक्चर दिखाता है, राइट? हाँ। सो देयर इज नो एनी इशू। हम्म। और सर यस। उसमें भी करंट 5 एम्पियर, 5 मिली एम्पियर। वर्चुअल लैब में तो आपको वही करना है। ओके, आप रेफरेंस कहाँ से लोगे आपका? दिस सेटअप observations. Okay, so you can write down this also, no issue. Okay, just see on my screen at first and then you perform it by yourself. देखो, हमने करंट जो है 5 मिली एम्पेयर लिया था, मतलब मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया था। नाउ डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर इंटरेस्ट, यू कैन चेंज द करंट, देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑफ दैट। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? वोल्टेज ज़्यादा होगा बिकॉज करंट ज़्यादा, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। ओके, विड्थ ऑफ द चिप जो है, मतलब फिजिक्स लैब में हम लोग 0.5 मिलीमीटर, मतलब कि 0.05 सेंटीमीटर से काम करता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन टू जो प्रोब है एस, उसको हम लोग बोलते हैं एस, कैपिटल एस। सो इट इज़ 0.2 सेंटीमीटर, मतलब कि व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि ये जो है ना, दिस एस, तो एस इज कांस्टेंट। ओके, 0.2 हर एक प्रोब के बीच में, सक्सेसिव प्रोब के बीच में 0.2 सेंटीमीटर, मतलब कि 2 मिलीमीटर जितना गैप होता है। एंड ये करेक्शन फैक्टर है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, G7 के, जिसमें क्या होता है कि ड्यू टू द इम्पेडेंस मिसमैचिंग वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस करेक्शन रेशियो। ये करेक्शन पैरामीटर है G7, तो इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द W एंड S।
So G7 is a function of W and S, and that equation is given by 2S divided by W ln2. Okay, so you just keep as it is as 5.546. Okay, because as you take the ratio and then multiplied by ln2, you'll be getting this 5.546. तो ये G7 जितना कम हो उतना ज्यादा अच्छा. Okay, formula are given to you. What you need to do is that, as usual, you need to find out the voltage. Okay, हमने कब से चालू किया था 25 डिग्री सेंटीग्रेड से, बराबर. केल्विन आप कर सकते हो प्लस 273 करके, मतलब ये कितना होगा 273 में 298 होगा ना, 298 बराबर. देन बाद में आप 10 बढ़ाते रहो, 45, ओके 55 एंड सो ऑन. यहाँ पे भी आपके 10 बढ़ते जाएंगे, सॉरी 308 and so on, right? So you need to write down the voltage over here, that's all. बराबर, बाकी का सारा कैलकुलेशन है, the entire calculation. वो जो सर ऊपर था वैसा ही. हाँ हाँ, तो रो 0 and then finally you will be calculating this energy band gap. Okay, so your observation table itself, मतलब कि आपको आपका ऑब्जर्वेशन टेबल ही समझा देगा कि भाई जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, तो वैसे वैसे आपका रो जो होता है वो डाउन होता है. मतलब ये कॉलम जो है वो आपको समझा देगा प्रैक्टिकली. थियोरेटिकली तो हम लोग पढ़ चुके हैं. ओके, कि भाई सेमीकंडक्टर जब गर्म होता है, मतलब whenever we are heating the semiconducting sample, then the after some extent of temperature the breaking of covalent bond will be there, and due to that breaking of covalent bond the conductivity will be increasing. Okay, and hence the resistivity is decreasing. So we can experimentally observe over here also the same thing. Okay, then take its natural log, मतलब ln rho, and then 1 by T in Kelvin, right? And then you try to plot the graph, and the graph nature will be like this. Mine will it is ln rho versus 1 by T. Okay, so 1 by T है, इसका मतलब क्या होता है कि भाई आपको टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा होगा, देन धीरे धीरे कम होता रहेगा. सॉरी, यहाँ पे ज़्यादा होगा टेम्परेचर एंड देन धीरे धीरे कम होता रहेगा. 1 by T है, इसलिए इनवर्स होगा. ओके, और सर एंड रो की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है? मतलब रो 0 तो पता चल गया, रो ये रहा V by A into 2 pi S. वो तो सर रो 0 नहीं है. That is rho 0 by G7 दे दिया है 5.546, बराबर. तो आपको इस रो 0 को, मतलब हर एक वैल्यू को 5.546 से आपको डिवाइड करना है, दैट्स ऑल. ओके सर. And finally you will be solving the quiz questions. बस इतना ही है. मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपको यही करना है कि वोल्टेज नोट डाउन करना है टेम्परेचर इंक्रीज करके, दैट्स ऑल, खत्म. ओके, बाकी का सारा कैलकुलेशन होगा. और सर प्रोसीजर इसमें? हाँ, प्रोसीजर मतलब ये मेरे पास ये जो वर्ड फाइल ना, दिस इज बेसिकली फिजिकल, राइट. नाउ व्हाट यू कैन डू इज दैट you just open that, let me open that. अभी इसमें कोई डाउट है? I don't think so there is any doubt नो सर. for this, है ना? नो सर. Just wait for a moment. Then
Yeah, they have given this procedure for simulation. Ne? Yeah, you just refer this and then procedure. This one. You just write down this stuff in your own language. Barabar? All the 11 steps. Complete? Oh. मतलब ये तो प्रोसीजर तो आप अपने हिसाब से भी लिखो, मतलब उतना ही अच्छा है, बिकॉज मतलब यू कैन राइट योर ओन लैंग्वेज, मतलब ये सेट करके हमने ये सेट करना है, ये सेट करके हमने ये प्रेस करना है, लाइक दैट, राइट, इन योर ओन लैंग्वेज. सो आई थिंक दैट विल बी मोर कन्वीनियंट. सर वो एक बार प्लीज आप मतलब वो स्टार्टिंग का बता सकते हो कि कोई एक मतलब स्टेप करके. मतलब दिस सिमुलेटर में, यस यस हाँ सर. सिमुलेटर में ना, जा सिमुलेटर. देखो, वेरिएबल्स पे जर्मेनियम है मेरे पास, राइट. So at first I will demonstrate once again by the germanium. Range by default मेरे सिस्टम ने सिलेक्ट किया है 20 मिली एम्पियर, राइट. तो आई विल कीप इट एज यूजुअल 20 मिली एम्पियर. करंट, तो वो वायर्स को कनेक्ट तो हमें जो नॉर्मली करते हैं वैसे ही करना है, वो जो ना ना आपको डायरेक्शन बताया उस करना ही नहीं डायरेक्शन में. कनेक्ट. ना सुनो, वायर तो कनेक्ट करना ही नहीं है ना, सब कुछ एवरीथिंग इज कनेक्टेड ओवर हियर. मतलब इट अच्छा. इज नॉट जस्ट, इट इज नॉट लाइक दिस प्लैंक्स कांस्टेंट, इट इज रेडीमेड कनेक्टेड. ओके ओके गॉट इट. हाँ. बस तो आपको तो सिंपली यही करना है कि भाई दिस सेट किया, ओके, तो आपका करंट सेट हो गया, राइट. एंड देन यू जस्ट एट फर्स्ट यू जस्ट नोट डाउन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको 0.1454 मिलता है, राइट. तो वो वोल्टेज ले लो, दिस इज डायरेक्टली इन वोल्टेज बिकॉज आई हैवंट चेंज दिस, राइट, 10 वोल्ट. तो मतलब हमें अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वोल्टेज चेक करना है यस स्वराज, यस यस यस. एंड करंट कांस्टेंट की उसको भी चेंज करना है. ना करंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट. ओके सर ओके. एक बार सेट कर दिया तो कर दिया, दैट्स खत्म. And then over here, from here you need to just drag the button. Okay, for example you want to सर perform. इसमें सर इसमें सिलिकॉन में हाँ, सिलिकॉन. सर उसमें ये वोल्ट मीटर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब 90.95, अरे सॉरी 95 का सेंटीग्रेड 95 डिग्री सेंटीग्रेड का जो वोल्ट मीटर रीडिंग है ना, वो चेंज ही नहीं हो रहा है. हाँ, तो एक काम कर सकते हैं ना, लाइक आपका 10 वोल्ट ही है, 10 वोल्ट है हाँ कॉन्फ़िगरेशन. हाँ. 10 वोल्ट कॉन्फ़िगरेशन तो फिर मतलब सर उसमें सेट और रन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. अच्छा, लेट मी चेक. सिलिकॉन के लिए ना, सिलिकॉन सिलिकॉन. सिलिकॉन के लिए 95 डिग्री सेंटीग्रेड ना. We need to wait till it reaches to 95. धीरे धीरे ये घटता रहेगा. तो एक काम कर सकते हैं, लाइक 10 वोल्ट की जगह पे 1 वोल्ट या 100 मिली वोल्ट ले लो, बिकॉज उतना मतलब कम होगा ना, तो वो 10 वोल्ट से, मतलब 10 वोल्ट के लिए, वो 10 वोल्ट की रेंज के लिए शायद वो काफ़ी ना हो, मतलब कि बहुत पर ज़्यादा सर ना हो. इसमें पहले जैसे हम सेट करके फिर मेजर करके रन करते थे, पर सर इसमें तो वो मतलब सर हो ही नहीं रहा कुछ. हाँ, एक मिनट, मेरा अभी ये 80 पे पहुंचा है, लेटेस्ट सी. 90, 91, 92, 93, 94, 5,
C95 में मुझे दिखा था 0.3381। हाँ सर, मुझे भी वही दिखा रहा है 0.3381। हाँ बस तो वही नोट डाउन कर लो, चलेगा। पर सर फिर अब बाकी के 85 तक रीडिंग्स भी तो लेने पड़ेंगे ना। हाँ 85 पे देख लो ना, 85 पे कितना है। हाँ सर, यही हो रहा है एग्जैक्टली। वेट करके भी रन नहीं हो रहा है। फिजिकल में भी ऐसा होता है, बिकॉज जब एक बार आपका टेम्परेचर, थर्मोमीटर का टेम्परेचर, यहाँ पे हम लोग थर्मोमीटर रखते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है। वी नीड टू इंसर्ट द थर्मोमीटर so that it just touches, the thermometer just touches to the this over here, यहाँ पे टच हो, right? And तो then सर हम करंट को अगर हम थोड़ा 3 या 4 कर देंगे तो कुछ फायदा होगा उससे? हाँ उससे हो सकता है, करके देखना पड़ेगा। करंट को सर 3 एम्प्स रख दे तो? हाँ कर सकते हैं, जस्ट राइट। Okay, so now onward, मतलब now you are not having any doubt, right? तो सर जर्मेनियम में तो कोई डाउट नहीं है, पर सिलिकॉन में ये सिलिकॉन में शायद वो करंट का इश्यू है, अगर आप
कर सकते हैं, हाँ नहीं सर, तो करंट मैंने 3 एम्प्स कर दिया, पर सर फिर भी वो वही है। वोल्टेज कांस्टेंट आ रहा है। ओके, वोल्टेज हाँ कांस्टेंट आ रहा है मतलब कि सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। ओके, मतलब लॉजिकली मतलब फिजिक्स व्यू पॉइंट अगर आप देखो ना तो ऐसा समझ सकते हैं कि भाई टेम्परेचर आप बढ़ाते रहते हो, राइट? तो धीरे धीरे कोवेलेंट बॉन्डिंग की संख्या जो होती है वो बढ़ती रहती है, राइट ना? मतलब उसके ब्रेकिंग की, राइट? नाउ व्हाट हैपेंस के एक टेम्परेचर के बाद फॉर एग्जांपल 90 डिग्रीज के बाद 91 हुआ, 92 हुआ, तो उस स्केल में जब जाते हैं हम लोग तो जितने कोवेलेंट बॉन्डिंग टूटने थे वो टूट चुके हैं। ओके, एंड जितना करंट फ्लो होना था, जितना आपको कंडक्टिविटी मिलना था वो मिल चुका है, राइट? नाउ देर इज नो एंड नो मोर यू कैन से further increment in your conductivity, resistivity and hence the energy band gap. Okay, तो हाँ ये समझ सकते हैं आप कि saturation point आ चुका है, now no more breaking of the covalent bond will exist, यस सर। है ना? And that's why I think in your 12th only you have been explained that at higher temperature your extrinsic semiconductor behaves like intrinsic semiconducting material, right? याद है वो? क्योंकि जो आपने डोपिंग किया था, राइट, जो कोरेंट बॉन्डिंग आपने करवाया था डोपेंट से, ओके, तो वो सब कुछ मतलब खत्म हो चुका है, मतलब उसका जो ब्रेकिंग जो कुछ होना था ना वो हो चुका है, बस खत्म। अभी या कोई ब्रेकिंग वेकिंग कुछ नहीं होगा इसके लिए। एंड दैट्स व्हाई मतलब दिस द सेम इफ यू जस्ट plot the graph also na, from graph only you can yourself realize। तो सर अभी सिलिकॉन का क्या करें? मतलब सिलिकॉन का जर्मेनियम एक का तो काम कर प्लॉट हो सकते हो, जाएगा। 95 को छोड़ दो और फॉर एग्जाम्पल 90 तक अगर आता है ना, 90 तक, 90 का आ रहा है ना? और नहीं सर, 95 का ही आ रहा है सिर्फ, मतलब 85 का आ रहा था पर वोल्टेज वो 95 वाली आ रही है सिर्फ। ओके, तो 95 को इग्नोर करो, जस्ट गो विथ दिस 85। उसमें भी सर 95 का ही वोल्टेज आ रहा है। हाँ, नो इश्यू। Okay, so if there is no any doubt, then you may leave this meeting, no issue। Okay, sir. Thank you, sir. Have a nice day. Yeah, most welcome, same to you।